कैसे हो मेरे पढ़ाकू? बढ़िया, मज़ा आ रहा है चैप्टर नंबर 5 में? मज़ेदार चैप्टर है। ओके, बहुत ही मज़ेदार चैप्टर है चैप्टर नंबर 5, मैग्नेटिज्म एंड मैटर। आगे बढ़ते हैं इस चैप्टर में। नेक्स्ट टॉपिक है मैग्नेटिज्म एंड गाउसेस लॉ। कौन सा टॉपिक है? मैग्नेटिज्म एंड गाउसेस लॉ। गाउसेस लॉ की आप लोगों को याद आ गई होगी, चैप्टर नंबर 1 में पढ़े थे, है ना? ओके, चैप्टर नंबर 1 में जो गाउसेस लॉ पढ़े थे वैसा ही गाउसेस लॉ यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड के लिए लगाना है। वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए लगाया था, अब मैग्नेटिक फील्ड के लिए लगाना है। इफ आई वांट टू फाइंड मैग्नेटिक फ्लक्स, then magnetic flux is integration of magnetic field with respect to area. So this is the surface integration of magnetic field. Surface integration of magnetic field is called magnetic flux. Here we have taken dA vector, it means this is area vector. Instead of this dA vector, if I take dl vector, then that is line integration. This is surface integration or areal integration. So formula of magnetic flux, that is surface integration of magnetic field. याद करो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या था? इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या था? इलेक्ट्रिक फ्लक्स is integration of E vector dot dA vector. Yes sir, integration of E vector dot dA vector. Here integration B vector dot dA vector. Flux that is scalar quantity, वो हम आगे पढ़ चुके हैं. Unit of magnetic flux, what should be the unit of magnetic flux? क्या बनेगा मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट? व्हाट इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड? दैट इज टेस्ला. व्हाट इज द यूनिट ऑफ एरिया? मीटर स्क्वायर. सो टेस्ला मीटर स्क्वायर इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स और इट इज कॉल्ड वेबर. इसे क्या बोला जाता है? वेबर. दिस टेस्ला मीटर स्क्वायर इज कॉल्ड वेबर. तो एक और नाम मिल गया, टेस्ला मीटर स्क्वायर इज नथिंग बट वेबर. तो आप बोल सकते हो मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट क्या बना? टेस्ला मीटर स्क्वायर और Weber. Now, according to Gauss's law, closed loop surface integration of magnetic field is 0. Closed loop surface integration of magnetic field, that is 0. It means net flux associated with closed surface is 0. This is Gauss's law. According to Gauss's law, closed loop surface integration of magnetic field is 0. And here from this Gauss's law we get one important thing. This Gauss's law will give proof of magnetic dipole. Only magnetic dipole exists. Monopoles do not exist. Monopole exist नहीं करता. Indirectly Gauss's law says that monopoles do not exist. अब आप बोलो कि सर कैसे? Closed loop surface integration of magnetic field, that is 0. इसमें से ऐसे कैसे पता चले कि monopoles do not exist? If I take one bar magnet, then it has two poles, north pole and south pole. So this is nothing but magnetic dipole. If I break this magnet into two pieces, then what will happen? We will have two pieces. This has north pole, this has south pole. This piece will have only one pole or it will have dipole.
2 poles, north pole, south pole, north pole, south. So if you break one bar magnet into 2 pieces, then that 2 pieces will behave as magnetic dipole. मतलब ये भी मैग्नेटिक डायपोल है. चलो अब ये जो पीस हैं उनको भी डिवाइड कर देते हैं 2 टुकड़ों. तो हमें छोटा सा टुकड़ा मिलेगा, ये दूसरा छोटा टुकड़ा, इसका भी एक पीस बनेगा और ये भी एक पीस बनेगा. ठीक. अब बताओ, अब क्या हमें डायपोल मिलेगी कि मोनोपोल? नॉर्थ साउथ, नॉर्थ साउथ, नॉर्थ साउथ, नॉर्थ साउथ. फर्दर इफ यू डिवाइड this piece into 2 pieces, then what will happen? That a small piece will also behave as dipole. It means if we keep on breaking this bar magnet into small pieces, then also each piece will behave as dipole. It means we are not going to obtain monopole. Monopole हमें मिलने वाला नहीं है. तोड़ते जाओ, जितना मर्जी तोड़ना है तोड़. मान लो तोड़ते हमारे पास क्या रह गया? एक एटम. क्या बच गया हमारे पास? सिर्फ एक एटम. सो फॉर डिफरेंट एटम्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी डिफरेंट. इफ आई टेक हाइड्रोजन एटम विच हैज़ ओनली 1 इलेक्ट्रॉन, देन that electron will revolve around the nucleus. When electron revolves around the nucleus, in this manner, then what will happen? Current will flow in the direction opposite to the motion of electron. So direction of electric current will be like this. Correct? When current is flowing, when charges are in motion at that time, current will be constituted, and if there is some current, then current is the source of magnetic field, then we will get some magnetic field. Suppose electron is moving like this in clockwise direction, then current will flow in anti-clockwise direction. ऊपर से देखें तो क्या लग रहा है? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. Direction of electric current, that is anti-clockwise. So this upper face will behave as north pole and lower face will behave as south pole. It means once again we are getting 2 poles, north pole and south pole. So if we have only 1 electron, then also we are getting dipole. It means if we take smallest atom, that is hydrogen atom, for that also we are getting dipole. Now, if you take out this electron out of this atom, then what will happen? There won't be any electron, and protons are inside the nucleus. They are not in motion. If charge is not in motion, then current will be 0. If there isn't any current, then there won't be any magnetic field, because current is the source of magnetic field. If current is not there, if magnetic field is not there, then why should we find pole? Dipole, right? Magnetic field is not there. It means there won't be any dipole. There won't be any monopole, right? So when we are taking single electron revolving around the nucleus, then also we are getting dipole. Correct? So always we will get dipole, not monopole. अब ये चीज़ गाउसिस लॉ पे से कैसे पता चले? According to Gauss's law, net flux associated with any closed surface is 0. So to understand this, let me consider one monopole. Suppose if I take north pole only, मान लो कि मोनोपोल एग्जिस्ट करता है. अगर करता है तो मान लो कि हमारे पास क्या है? एक ही पोल है, नॉर्थ पोल. करेक्ट? सो फ्रॉम दिस नॉर्थ पोल magnetic field lines will come out like this. Yes or no? Now if I take one closed surface of any arbitrary shape, then for that magnetic flux
विल बी जीरो और नॉट, इसके लिए मैग्नेटिक फ्लक्स जीरो होगा कि नहीं? फ्रॉम दिस क्लोज सरफेस ओनली मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स आर कमिंग आउट. व्हेन ओनली मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स आर कमिंग आउट देन मैग्नेटिक फ्लक्स विल बी पॉजिटिव. याद हो तो चैप्टर नंबर 1 में पढ़ चुके. व्हेन फील्ड लाइन्स आर कमिंग आउट ओनली एट दैट टाइम फ्लक्स विल बी पॉजिटिव. इफ आई टेक सिंगल साउथ पोल then magnetic field lines are towards the south pole like this, and if I consider any closed surface then field lines are only entering into this closed surface. If field lines are only entering, then flux associated with this closed surface will be negative but not zero. Correct? So here we are getting net flux positive, here we are getting net flux negative. But according to Gauss's law, net flux associated with any closed surface is always zero. But here we are not getting zero. If monopole exists, then this law will be incorrect. Correct? अगर मोनोपोल एग्जिस्ट करेगा तो गाउसेस लॉ गलत हो जाएगा. But Gauss's law is correct. For any closed surface, surface integration of magnetic field is always zero. It means only dipole exists. Correct? सिर्फ dipole exist करती है, monopole exist करता नहीं है. So this is the conclusion from Gauss's law. Law लिखना है तो कैसे लिखेंगे? Net flux associated with any closed surface is zero. Which flux? Magnetic flux. Net magnetic flux associated with any closed surface is zero. For electric flux, closed loop surface integration of electric field, that is charge enclosed upon epsilon naught. क्या ठीक? ये चीज़ पढ़े थे हम. Closed loop surface integration of electric field, that is charge enclosed upon epsilon naught. But for magnetism, closed loop surface integration of magnetic field, that is zero, and that is nothing but Gauss's law. Net flux associated with any closed surface is zero when we are studying about magnetism. But when we are studying about electrostatics, at that time surface integration of electric field is equal to ratio of charge enclosed by the Gaussian surface to the permittivity of free space. So Gauss's law for magnetism is now clear to you. The net flux associated with any closed surface is zero, and it indicates that monopoles do not exist. What is the formula of magnetic flux? That is nothing but surface integration of magnetic field. Integration B vector dot dA vector is called magnetic flux. And what is the unit of magnetic flux? Tesla meter square और Weber. क्या ठीक? समझ में आ गया गाउसेस लॉ? एकदम क्लियर है? परफेक्ट. ओके. अब आप लोगों को एक एग्जाम्पल मिलना चाहिए होमवर्क में. तो आइए आप लोगों को एक होमवर्क में एग्जाम्पल दे देते हैं. एग्जाम्पल 5.7 आई एम गिविंग यू इन होमवर्क. कौन सा एग्जाम्पल करना है? एग्जाम्पल 5.7. नेक्स्ट टॉपिक, मज़ेदार टॉपिक, द अर्थ्स मैग्नेटिज्म. अर्थ्स मैग्नेटिज्म मतलब अर्थ की भी कुछ मैग्नेटिक फील्ड है. कैसे पता चले अर्थ की भी मैग्नेटिक फील्ड है? याद करो, फर्स्ट लेक्चर में मैंने बताया था, व्हेन वी सस्पेंड एनी मैग्नेटिक नीडल and if the magnetic needle is free to rotate, then after some time this magnetic needle will align in which direction? North south direction. yes or no? कौन सी डायरेक्शन में अलाइन हो जाती है? नॉर्थ साउथ डायरेक्शन. मतलब वो एक डायरेक्शन में अलाइन कर जाती है. किसकी वजह से? अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड की वजह से. कोई उसके ऊपर फोर्स लगाता है तभी वो एक डायरेक्शन में अलाइन हो जाती है. मतलब अर्थ की भी कुछ मैग्नेटिक फील्ड है. अर्थ की भी कुछ मैग्नेटिक फील्ड है.
तो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है तो किसकी वजह से, व्हाट इज़ द रीज़न, रीज़न क्या है कि अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है? तो पहले ऐसा माना जाता था कि अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है कोई जायंट बार मैग्नेट की वजह से। किसकी वजह से? ड्यू टू सम जायंट बार मैग्नेट। प्लेस्ड डीप inside the earth along the axis of rotation of the earth। मतलब मान लो कि ये अर्थ क्या, ठीक, दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन, करेक्ट। along the axis of rotation of earth there is some giant बार मैग्नेट डीप इनसाइड द अर्थ लाइक दिस, नॉर्थ साउथ पोल। कोई अंदर बार मैग्नेट है जिसकी वजह से अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है। तो ये चीज़ मानी गई। तो इसका मतलब है अर्थ के अंदर कोई बड़ा मैग्नेट होना चाहिए, कोई मटेरियल होना चाहिए जो डायपोल की तरह बिहेव करता है, ठीक। बट टेम्परेचर ऑफ कोर ऑफ अर्थ इज वेरी हाई। अंदर का जो टेम्परेचर है वो बहुत हाई है। एंड एट दिस हाई टेम्परेचर नन ऑफ द मैग्नेटिक मटीरियल विल शो इट्स मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। ऐसा कोई मटेरियल नहीं होगा जो इतने हाई टेम्परेचर पे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करेगा। मतलब ये पॉसिबल नहीं है। इतने हाई टेम्परेचर पे अगर कोई मटेरियल भी है, कोई अंदर बार मैग्नेट है, तो वो मैग्नेटिक फील्ड देगा हमें, क्योंकि टेम्परेचर क्या है, बहुत हाई। एंड एट दिस हाई टेम्परेचर नन ऑफ द मटेरियल विल एग्जिबिट मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। तो ये चीज़ नहीं हो सकती, इसका कोई प्रूफ भी नहीं मिला, ऐसा कोई मैग्नेट भी नहीं मिला। मतलब ये जो रीज़न है वो फेल हो गया। इट मीन्स द जायंट बार मैग्नेट प्लेस्ड डीप इनसाइड द अर्थ, दिस लॉजिक इज़ नॉट ट्रू, ये गलत है। चलो तो फिर देखते हैं सेकंड पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है। सेकंड पॉसिबिलिटी पे आऊँ तो ध्यान देना। सेकंड पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, तो सोचा गया कि अर्थ के अंदर से हमें मैग्नेटिक फील्ड मिल रही है। इफ अर्थ हैज सम मैग्नेटिक फील्ड देन दैट मस्ट बी ड्यू टू मोल्टन मेटालिक फ्लूइड। किसकी वजह से होनी चाहिए? मोल्टन मेटालिक फ्लूइड। दैट इज नथिंग बट मोल्टन आयरन एंड निकल। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी inside the earth is due to molten iron and nickel. At high temperature, this iron and nickel will melt. That's why I have written molten metallic fluid. It means at high temperature, this molten metallic fluid, that is iron and nickel, will get ionized. वो ionize हो जाएंगे. When they are ionized, it means electrons will come out from the atom, and this iron and nickel will become ionized. So we will have in the outer part of the earth, suppose there is molten metallic fluid and the atoms of the iron and nickel suppose gets ionized like this. But earth rotates about its own axis like this. So when earth is in motion, at that time these ions are also in motion. When ions are in motion, at that time some current will be constituted. Due to rotation of this molten metallic fluid, some current will be constituted.
एंड वी नो दैट करंट इज द सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड मिल रही है अर्थ की, वो किसकी वजह से होनी चाहिए? ड्यू टू रोटेशन ऑफ मोल्टन मेटालिक फ्लूइड्स। व्हेन दिस मोल्टन मेटालिक फ्लूइड्स आर मूविंग about the axis of earth, when they are in motion, due to that some current will be constituted, and when current is constituted like this, when current is flowing through any circular coil, when current is flowing through any circular coil, due to that we will have some magnetic field, yes or no? याद करो, हमने पढ़ा हुआ, when current is flowing at the time we will get some magnetic field। तो दूसरा रीज़न ऐसा माना गया कि ये जो हमें मैग्नेटिक फील्ड मिल रही है वो किसकी वजह से है? ड्यू टू रोटेशन ऑफ दिस आयोनाइज्ड एटम्स। व्हेन दिस आयंस आर इन मोशन, ड्यू टू दैट सम करंट इज कंस्टिट्यूटेड, एंड ड्यू टू दैट वी आर गेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ इज डिफरेंट एट डिफरेंट प्लेसेस। Magnetic field is different at different places, and that magnetic field is of the order of 10⁻⁵ Tesla. Earth's magnetic field is of the order of 10⁻⁵ Tesla. हर अलग अलग जगह पे, अलग अलग कंट्री में मैग्नेटिक फील्ड अलग अलग होगी, पर उसका ऑर्डर क्या होगा? दैट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁵ Tesla। 3 × 10⁻⁵ टेस्ला होगी, 2 × 10⁻⁵ टेस्ला होगी, बट द ऑर्डर विल बी 10⁻⁵ टेस्ला। ठीक, तो ये एक रीज़न माना गया। नाउ व्हाट अबाउट मून? तो फिर मून की भी कुछ मैग्नेटिक फील्ड होनी चाहिए, यस और नो? बट मून हैज़ नो मोल्टन फ्लूइड, मोल्टन मेटालिक फ्लूइड। उसके पास कोई मोल्टन मेटालिक फ्लूइड नहीं है। नो मोल्टन मेटालिक फ्लूइड, इट मीन्स नो आयोनाइजेशन। नो आयोनाइजेशन मीन्स नो इलेक्ट्रिक करंट। नो इलेक्ट्रिक करंट मीन्स नो मैग्नेटिक फील्ड। तो मून की कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। चल, वीनस कंसीडर करें तो वीनस के लिए क्या है? रोटेशन ऑफ वीनस इज वेरी स्लो। तो इसका रोटेशन जो है वो कैसा है? रोटेशन इज वेरी स्लो। इफ इट रोटेट्स वेरी स्लोली, देन व्हाट विल हैपन? दिस चार्जेस आर इन मोशन बट दे आर मूविंग वेरी स्लोली, एंड करंट इज नथिंग बट रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, yes or no? When charges are in motion but they are moving very slowly, then electric current will be less. When current is less, then magnetic field will be very weak. So Venus has weak magnetic field. कैसी मैग्नेटिक फील्ड है वीनस की? वीक मैग्नेटिक फील्ड। चल, फिर ऑब्जर्व किया गया जुपिटर को। जुपिटर, सो फास्ट रोटेशन, इफ इट रोटेट्स वेरी फास्ट देन rate of flow of charge is more. If rate of flow of charge is more, then current will be more. If current is more, then Jupiter has very strong magnetic field. जुपिटर की मैग्नेटिक फील्ड कैसी है? बहुत ज़्यादा। तो ये चीज़ें ऑब्जर्व की गई। सो नाउअडेज वी बिलीव दैट अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड इज ड्यू टू रोटेशन ऑफ मोल्टन मेटालिक फ्लूइड। इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड है अर्थ की, ऐसा माना जाता है। बट स्टिल वी डोंट नो दैट वेदर इट इज़ ट्रू और नॉट। रिसर्च इज गोइंग ऑन, रिसर्च चल रही है, पर अभी ये चीज़ तो गलत ही है, इसका कोई प्रूफ मिला नहीं है। और मून के लिए, वीनस के लिए, जुपिटर के लिए ये चीज़ें ऑब्जर्व की गई। तो आज की डेट में क्या माना जाता है?
Earth's magnetic field is due to molten metallic fluid, rotation of molten metallic fluid. इसकी वजह से अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है. अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे मिले? सो नाउ वी विल स्टडी अबाउट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ अर्थ. चलो नेक्स्ट है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ अर्थ. मैग्नेटिक फील्ड लाइंस Earth. Earth's magnetic field line. If Earth behave as magnetic dipole, if it has magnetic field line, then which type of magnetic field line we will get? Suppose this is Earth and this is the axis of rotation. Correct? Now here magnetic field lines of Earth is like this. This way we are getting magnetic field lines. Now you can see this is the direction of magnetic moment, and outside this we are getting this type of magnetic field lines. So magnetic field lines are same as the magnetic field lines of बार मैग्नेट. याद करो, क्या ऐसी ही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बार मैग्नेट के लिए मिली थी? अरे यार हाँ ना बोल, क्या मिली थी? सो हियर वी विल इमेजिन वन बार मैग्नेट इनसाइड द अर्थ. दिस इज इमेजिनरी बार मैग्नेट. इमेजिनरी, एक्चुअल नहीं है. एक्चुअल में तो हमने देख लिया कोई अंदर बार मैग्नेट नहीं है. बट हियर वी कैन थिंक ऑफ वन मैग्नेटिक डायपोल इनसाइड द अर्थ. तो मुझे बताओ यहाँ पे कौन सा पोल बनना चाहिए? साउथ पोल. और यहाँ पे कौन सा पोल बनना चाहिए? नॉर्थ पोल. बट एक्चुअली जियोग्राफिक नॉर्थ पोल तो कौन सा है? दिस इज जियोग्राफिक नॉर्थ पोल एंड दिस इज जियोग्राफिक साउथ पोल. क्या ठीक? And here we are getting magnetic field lines in this direction, and we know that inside the bar magnet magnetic field lines are from south to north, and outside the bar magnet magnetic field lines are from north to south. तो मतलब कुछ ऐसा बार मैग्नेट हम अंदर सोच सकते हैं, ऐसी कुछ चीज़ होगी अंदर जिसकी वजह से हमें अर्थ मैग्नेटिक फील्ड मिल रही है. चलो ठीक, मान लिया. सो नाउ हियर if we consider one person at this place, ये हो गई एक्सिस ऑफ बार मैग्नेट, और इसके लिए इक्वेटोरियल लाइन ड्रॉ करूँ तो इक्वेटोरियल लाइन कुछ ऐसी बनेगी. करेक्ट? सो दिस इज द इक्वेटोरियल लाइन एंड दिस इज द इक्वेटर. करेक्ट? On this magnetic equator, if I consider some person, suppose one person is standing over here. अब आप बोलोगे सर यहाँ पे कैसे खड़ा रहेगा, नीचे नहीं गिर जाएगा? अरे भाई अर्थ की सरफेस है ये पूरी, और सब लोग के ऊपर कौन सा फोर्स लग रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स. यस और नो? तो कोई यहाँ पे कोई कंट्री है, कोई यहाँ पे खड़ा होगा, कोई यहाँ पे खड़ा होगा, राइट? कोई यहाँ पे भी खड़ा होगा ये सरफेस पे. तो कोई खड़ा होगा तो यहाँ पे कैसे खड़ा होगा भाई?
यस और नो? इसका मतलब ये नहीं कि उल्टा खड़ा है, ज़मीन ऊपर है वो नीचे, ऐसी बात नहीं है, ऐसा मत समझना। ये तो अर्थ का नीचे का पार्ट आ गया, ये सीधा जाएगा। नीचे वालों के लिए ये सरफेस है, मान लो कि हम जहाँ पे खड़े हैं वही नीचे का पार्ट है, पर हम तो ऐसे खड़े हुए हैं, ठीक। हमारे ऊपर कौन सा फोर्स लग रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स, और ग्रेविटेशनल फोर्स इज टुवर्ड्स द सेंटर, यस और नो? तो इन सब के ऊपर फोर्स कौन सा लग रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स। नहीं तो ये जाता आसमान में, है कि नहीं, सीधा ऊपर चले जाते, ग्रेविटी नहीं होती तो। क्या ठीक? अरे यार हाँ ना बोल। तो यहाँ पे मान ले एक इंसान खड़ा हुआ है, ठीक, और उसके हाथ में क्या है? मैग्नेटिक नीडल। चलो मैग्नेटिक नीडल रखी हुई, तो यहाँ पे मैग्नेटिक नीडल रखें तो मैग्नेटिक नीडल कौन सी डायरेक्शन में अलाइन होगी? दिस मैग्नेटिक नीडल विल अलाइन इन दिस डायरेक्शन। दिस इज साउथ पोल, दिस इज नॉर्थ पोल, करेक्ट? साउथ टू नॉर्थ, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ओके, यहाँ पे इस सरफेस के आगे अगर कोई इंसान खड़ा हो मैग्नेटिक नीडल लेके, तो मैग्नेटिक नीडल यहाँ पे कैसे अलाइन हो जाएगी? दिस वे, दिखा रहा हूँ, साउथ पोल, दिस इज नॉर्थ पोल, ठीक है। सो नॉर्थ पोल विल बी टूवर्ड्स द सरफेस, नॉर्थ पोल विल बी टूवर्ड्स द सरफेस, मतलब ये हो गया नॉर्थ पोल, ये हो गया साउथ पोल, ठीक। यहाँ पे कोई इंसान खड़ा रखें इस सरफेस पे, ठीक, तो उसके लिए मैग्नेटिक नीडल की कौन सी डायरेक्शन होगी? बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड लाइन इज इन दिस डायरेक्शन, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। तो जहाँ पे भी तुमने मैग्नेटिक नीडल रख दी तो मैग्नेटिक नीडल विल अलाइन इन विच डायरेक्शन? नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। सो मैग्नेटिक नीडल विल अलाइन लाइक दिस। अरे यार हाँ ना बोल। तो ये कौन सा हो गया? साउथ, ये कौन सा हो गया? नॉर्थ। क्या ठीक दिख रही है चीज़ें? ये हुआ साउथ, ये हुआ नॉर्थ, करेक्ट। तो मैग्नेटिक नीडल अलग अलग जगह पे रखोगे तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन मिल जाएगी। इट मीन्स एट दिस प्लेस मैग्नेटिक फील्ड इज इन दिस डायरेक्शन, साउथ टू नॉर्थ। यहाँ पे खड़े रहे तो मैग्नेटिक फील्ड की कौन सी डायरेक्शन है? साउथ टू नॉर्थ, टूवर्ड्स द सरफेस। यहाँ से देखें तो अवे फ्रॉम द सरफेस। यहाँ पे देखा हो तो मैग्नेटिक नीडल यहाँ पे रखे, मान लो कि इस प्लेस पे खड़े हम, तो यहाँ पे मैग्नेटिक नीडल कैसे जा रही है? सरफेस से अवे फ्रॉम द सरफेस। सो दिस इज द सरफेस, नॉर्थ पोल विल बी इन दिस डायरेक्शन एंड साउथ पोल इज टूवर्ड्स द सरफेस। अरे यार हाँ ना बोल। क्या ठीक? सो हियर दिस सरफेस इज this surface is near to the pole, this surface is near to the pole, this surface is on the equator of this magnetic dipole, this is the equator of magnetic dipole and we have considered this place on the equator of magnetic dipole. Here direction of magnetic field is parallel to the surface. सरफेस के कैसा है? पैरेलल, मतलब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसे दिखा रही है, पैरेलल टू द सरफेस, पैरेलल टू द सरफेस। मान लो कि ये नॉर्थ और ये हो गया साउथ, देन मैग्नेटिक नीडल विल शो डिफ्लेक्शन लाइक दिस पैरेलल टू द हॉरिजॉन्टल सरफेस। यहाँ पे पहुँचे तो मैग्नेटिक नीडल की डायरेक्शन कौन सी होगी? साउथ टू नॉर्थ, इट मीन टूवर्ड द सरफेस। तो यहाँ पे नॉर्थ पोल कौन सा बना? दिस वन। क्या ठीक? फॉर डिफरेंट प्लेसेस दैट नॉर्थ पोल मतलब जियोग्राफिक नॉर्थ और जियोग्राफिक साउथ तो यही हैं, पर मैग्नेटिक नीडल जिस डायरेक्शन में नॉर्थ दिखा रही है उसकी बात करो, कंफ्यूज नहीं होना यहाँ पे, ठीक। अर्थ मैग्नेटिक फील्ड में कंफ्यूजन ज़्यादा आएंगी, पर अच्छे से लेक्चर को देखोगे समझोगे तो कोई दिक्कत आएगी नहीं। तो यहाँ पे खड़ा हूँ, कहाँ पे खड़ा हूँ? ऑन द एक्सिस ऑफ दिस इमेजिनरी बार मैग्नेट, देन व्हाट विल हैपन? मैग्नेटिक नीडल विल शो डिफ्लेक्शन इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। इट मीन्स दिस इज द नॉर्थ एंड दिस इज साउथ, इट मीन्स दिस मस्ट बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से ऐसे जा रही होगी, क्या ठीक? जब इस पोजीशन पे थे इक्वेटर पे तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे जा रही थी? पैरेलल टू द सरफेस ऑफ अर्थ। तो उसकी डायरेक्शन कैसी थी? साउथ टू नॉर्थ इन दिस डायरेक्शन। इट मीन्स मैग्नेटिक फील्ड लाइन इज इन दिस डायरेक्शन, साउथ टू नॉर्थ। चलो यहाँ पे आ जाऊँ तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की कौन सी डायरेक्शन होगी मुझे बताओ? दिस इज ऑल्सो द प्लेस ऑन द इक्वेटर। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कौन सी होगी?
in this direction. Magnetic needle will show deflection in this direction, south to north, because magnetic field is in this direction. So here also this magnetic field is parallel to the surface, yes or no? Here magnetic field that is perpendicular to the surface. क्या चीज़ें समझ में आ रही हैं एकदम? So here we have considered one imaginary bar magnet inside the earth. This is imaginary, but magnetic field of earth, that is true. Originally earth has some magnetic field, therefore we are getting this type of magnetic field lines. This bar magnet is imaginary, but we get value of magnetic field at each and every place on the earth. हर एक प्लेस पे मैग्नेटिक फील्ड है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड तो एग्जिस्ट कर रही है, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड तो है, दैट इज नॉट इमेजिनरी. बट दिस बार मैग्नेट वट एवर वी हैव टेकन इन साइड द अर्थ, दैट इज इमेजिनरी. क्या ठीक? नाउ एट दिस सरफेस magnetic needle is pointing in downward direction. It means north pole is towards the surface. So this surface is called magnetic north. It means this side is called magnetic north, and here south pole is pointing towards the surface, therefore this is called magnetic south. ध्यान देना, ये बार मैग्नेट तो इमेजनरी. हियर नॉर्थ पोल इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स द सरफेस, देयरफॉर दिस इज कॉल्ड मैग्नेटिक नॉर्थ. एंड हियर साउथ पोल इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स द सरफेस, देयरफॉर दिस प्लेस इज कॉल्ड मैग्नेटिक साउथ. राइट? तो इसको बोला गया मैग्नेटिक नॉर्थ, इसको बोला गया मैग्नेटिक साउथ. क्या समझ में आया? एकदम क्लियर, परफेक्ट. चलो आगे बढ़ते हैं. सो वंस अगेन वी हैव टू पोल्स, मैग्नेटिक नॉर्थ एंड मैग्नेटिक साउथ. कौन सा हो गया? मैग्नेटिक नॉर्थ एंड मैग्नेटिक साउथ. तो अगेन वी हैव डायपोल, डायपोल मिल गए. फॉर अर्थ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स आर कमिंग आउट फ्रॉम साउथ पोल. मैग्नेटिक साउथ, ये तो इमेजनरी है, ठीक है. इसको हमने क्या नाम दे दिया? मैग्नेटिक साउथ. इसको क्या नाम दे दिया? मैग्नेटिक नॉर्थ. फॉर अर्थ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स आर कमिंग आउट फ्रॉम मैग्नेटिक साउथ पोल. And for earth magnetic field lines enter into the magnetic north pole. Correct? Magnetic field lines enter from this magnetic north, and magnetic field lines come out from this मैग्नेटिक साउथ. तो ही तो कंसिस्टेंसी बैठेगी. यहाँ पे हमने जियोग्राफिक साउथ लिया, तो यहाँ पे हम क्या ले लेते हैं? मैग्नेटिक साउथ. यहाँ पे हमने जियोग्राफिक नॉर्थ है, तो ये कौन सा होना चाहिए? मैग्नेटिक नॉर्थ. बाकी एक्चुअली अगर इमेजनरी बार मैग्नेट कंसिडर करें तो ये क्या बनेगा? साउथ पोल. ये क्या बनेगा? नॉर्थ पोल. एंड व्हेन वी कंसिडर इमेजनरी बार मैग्नेट, देन ओनली वी विल बी एबल टू अंडरस्टैंड अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड. अगर अर्थ मैग्नेटिक फील्ड समझनी है तो अंदर एक बार मैग्नेट सोचना पड़ेगा, ठीक. बिकॉज वी नो दैट मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स आर फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ इनसाइड द बार मैग्नेट, एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स कम आउट फ्रॉम नॉर्थ एंड एंटर्स इनटू साउथ. कम आउट फ्रॉम नॉर्थ एंड एंटर्स इनटू साउथ. अब की फिगर आप लोगों को ऐसे याद रखनी है. दिस इज द अर्थ, दिस इज geographic north, this is geographic south. This is magnetic north, this is magnetic south. Correct? Now you can see there is some angle between
axis of this magnetic dipole and geographic axis. This is magnetic axis. And this angle is 11.3 degree. It means this magnetic axis is slightly tilted from this geographic axis. These two axes are not coinciding. मतलब मैग्नेटिक एक्सिस जो है थोड़ी सी डेविएट हुई है. कितने एंगल से? 11.3 डिग्री. 11.3 degree. Same will be this, correct? Now here this is geographic equator. And this is मैग्नेटिक इक्वेटर. ये टॉपिक में आप लोगों को ध्यान देना होगा. दिस इज जियोग्राफिक एक्सिस, दिस इज मैग्नेटिक एक्सिस. दिस इज जियोग्राफिक इक्वेटर, दिस इज मैग्नेटिक इक्वेटर. Here magnetic field lines will come out from this magnetic south like this, and this magnetic field lines will enter from this magnetic north like this. ऐसा सोच सकते हैं. ऊपर बना देता हूँ कुछ ऐसे, ठीक. So this way we will get magnetic field lines, and this is magnetic axis. This is geographic axis, this is geographic equator, this is magnetic equator. This is nothing but, this is a place where we are considering magnetic south, that is nothing but Antarctica, and this magnetic north is found to be at North Canada, somewhere नियर नॉर्थ कैनेडा. मतलब मैग्नेटिक नॉर्थ नॉर्थ कैनेडा के पास में है और मैग्नेटिक साउथ एंटार्क्टिका के पास में, राइट. एंड दिस एंगल दैट इज 11.3 डिग्री. नाउ magnetic field lines come out from south and enters into north, comes out from south and enters into north for earth only, not for bar magnet, not for magnetic dipole, for earth only. Magnetic field lines come out from south and enters into north, comes out from magnetic south and enters into magnetic north. क्या ये चीज़ें क्लियर हैं एकदम? यहाँ पे कन्फ्यूज़न होना चाहिए नहीं. हमको मालूम है अंदर हमने क्या कंसिडर किया हुआ है, इमेजिनरी बार मैग्नेट. ड्यू टू दिस इमेजिनरी बार मैग्नेट वी आर गेटिंग दिस टाइप ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स. बट एक्चुअली मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स ऑफ अर्थ आर हैविंग शेप और पैटर्न सेम एज द मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स ऑफ बार मैग्नेट. शेप ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स ऑफ अर्थ is same as shape of magnetic field lines of bar magnet. To understand Earth's magnetic field, we should understand about three elements. First, that is angle of declination. Angle of declination. Second, that is deep angle, or it is called inclination. And third, that is horizontal component of Earth's magnetic field. Horizontal component of Earth's magnetic field. ये तीन एलिमेंट अगर हमारे समझ में आ जाए तो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड हम निकाल सकते हैं. एट डिफरेंट प्लेसेस इफ यू वांट टू नो द वैल्यू ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड, then first of all we should have angle of declination, angle of
एंगल, डीप एंगल एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। अगर ये 3 एलिमेंट हो गए तो हम मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं। अर्थ मैग्नेटिक फील्ड वी कैन फाइंड एट डिफरेंट प्लेसेस। बट अबाउट दिस 3 एलिमेंट्स वी विल स्टडी इन नेक्स्ट लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। आज हमने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ अर्थ के बारे में पढ़ा, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पढ़ा, ठीक है, गाउसियस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म पढ़ा। एक एग्जाम्पल आप लोगों के लिए होमवर्क में बनता है, अगर ये चीज़ें समझ में आ गई हैं, इक्वेटर, एक्सिस एक्सेट्रा, तो आप लोगों को मैं एक एग्जाम्पल 5.8 होमवर्क में दे रहा हूँ। कौन सा एग्जाम्पल 5.8 आई एम गिविंग यू इन होमवर्क। आप लोग सॉल्व कर सकते हो। हाउ टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस, मैग्नेटिक फील्ड ऑन द इक्वेटर, फॉर्मूला वी नो, दैट फॉर्मूला यू कैन अप्लाई एंड यू कैन सॉल्व एग्जाम्पल 5.8। आई एम स्टॉपिंग हियर। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, दीपक सर के साथ पढ़ते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।